Good morning, dear students. So, today we are going to begin one more chapter of our syllabus, and again, one of the interesting aspect as well as the concepts that you basically know about. But here, obviously, we will be giving some extra informative and some enhanced knowledge about the topic of the chapter, that is strategies for enhancement in food production. तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि डे बाय डे human population is increasing and the land area which is now going to be utilized for industrialization and urbanization process, the fertile soil is decreasing. Along with that, it is also impacting the animal husbandry, which is directly related to the farming activity. तो डियर स्टूडेंट्स, इतना तो हमारे नॉलेज में है कि इन नियर फ्यूचर we will be facing the scarcity of the food and some resources related to that. And to deal with, to give answer to that question, scientists have tried out some strategies for enhancement in the food production, whether it is from your farming activity or it is from animal husbandry and some other novel products. So इस chapter में हम उन्हीं चीजों को discuss करने वाले हैं. It will be one of the interesting chapter, though it is having some informative things only, but obviously you will like it. So dear students, starting the chapter with the first topic of it, that is animal husbandry. Keeping the cattle and some domestic animals for their commercial purpose, okay, for getting variety of the products from this animals, okay, we are doing this activity since time immemorial. So what we are going to learn in animal husbandry, what is animal husbandry first of all? So it is the scientific agricultural practice of breeding and raising the livestock of the animals. Okay, तो एनिमल हस्बेंड्री में सिर्फ हम वहां पे एनिमल्स को जस्ट imprison, we are not keeping the animals only, but we are actually trying in the scientific manner for their breeding, as well as we are maintaining and raising the livestock. We are also going to create some standard breeds, okay, fruitful breeds of these animals, okay, and this deals with what? एक तो है care and breeding of livestock, first purpose of the animal husbandry, और उस livestock में हम domestic animals को यहाँ पे target में ले रहे हैं. Those are buffaloes, cows, pigs, horses, cattle, sheep, camels, goats, etc. Poultry farming as well, okay. और poultry farming में पता है it is related to birds. Third is fisheries, okay, related to aquatic life. So यहाँ इन सभी के बारे में animal husbandry के aspect में हम discuss करने वाले हैं. आप यहाँ पे एक photograph देखिए of the map. You can see calculated livestock density, that is tons per square kilometer. तो उसमें सबसे ज्यादा डेंस अगर कोई है तो दैट इज इंडिया. इंडिया इज ऑब्वियसली हैविंग एनॉर्मस बायोडाइवर्सिटी, वी हैव ऑब्जर्व्ड इन चैप्टर नंबर 15. और उसके साथ साथ एनिमल डाइवर्सिटी भी इंडिया में बहुत ज्यादा है. वी नो दैट एवरी सेवेंथ ऑर्गेनिज्म इज एनिमल, ओके. और उसमें भी अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इंडिया की बात कर रहे हैं, ओके, तो आप देख सकते हैं डेंसिटी कितनी है, 60+, मतलब एटलीस्ट 60 टन्स पर स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू 1994. ये है, आज से आप सोच सकते हैं 25 इयर्स के पहले का ये डेटा है. तो अभी तो ऑब्वियस है लाइव स्टॉक के बारे में एक अवेयरनेस बढ़ा है, ओके. ये सारी टेक्निक्स भी अभी एनहांस है एंड उसी की वजह से लाइव स्टॉक जो है टन्स पर स्क्वायर किलोमीटर वो भी ऑब्वियसली बढ़ा है.
more than 70% of the world livestock population is in India and China. आप सोचिए, only in two of the countries, India and China, okay, only these two countries are having this livestock, okay. But ये भी एक प्रॉब्लम है, contribution to the world farm produce is only 25%. अब होना क्या चाहिए, 70%. अगर आपके पास लाइवस्टॉक पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली आपका कंट्रीब्यूशन भी नियर अबाउट 70% होना चाहिए. बट व्हाट हैपेंस ओवर हियर, इंडिया और चाइना का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है टू द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उसमें इंडिया और चाइना का कंट्रीब्यूशन कितना है, 25%. दैट इज द प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो, यू कैन से. हेंस न्यू टेक्नोलॉजी शुड बी अप्लाइड टू अचीव improvement in quality as well as productivity. तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री में फोकस किसके ऊपर करना है इंडिया में, एक तो हमारा जितना लाइव स्टॉक है उस लाइव स्टॉक को हम कितना यूज कर रहे हैं, ओके, कितनी उसकी एप्लीकेबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, यूटिलिटी बढ़ा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई नोवेल अप्रोचेस, ओके, यू हैव टू अप्लाई साइंटिफिक अप्रोचेस एंड not only increasing the productivity, number one, वो तो करना ही है, that is quantity increase, productivity increase, but उसके साथ साथ एक दूसरा भी फोकस एरिया है, that is increase in the quality as well. तो दो चीजों पे यहाँ पे काम करना है to achieve the improvement in quality as well as quantity. सो अगर आपको ये सब करना है तो ये सारी प्रैक्टिस कहाँ से शुरू होगी, तो ऑब्वियस है कि यू हैव टू मैनेज योर फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स, ओके, जहाँ पे आप इन सभी एनिमल्स को रखते हैं उन ऐसे फार्म्स का मैनेजमेंट, और उस फार्म्स में जो एनिमल्स आपने रखे हैं फॉर सम कॉमर्शियल पर्पस, उनका भी मैनेजमेंट करना इम्पोर्टेंट है. एंड इट इज नॉट नॉन साइंटिफिक, इट इज ऑब्वियसली साइंटिफिक अप्रोच. और उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेयरी फार्म मैनेजमेंट, जहाँ पे particularly we have kept this animals for the dairy products, या particularly you can say milk. तो डेयरिंग, उसके लिए हमें डेयरी फार्म मैनेजमेंट कैसे करना है और उन एनिमल्स का भी मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. So it is the management of animals for the increasing yield and quality of milk and its products. Obvious है, डेयरी के बारे में है तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे. कंसेप्ट विल बी सेम थ्रू आउट द चैप्टर, दो चीजों पे ही फोकस करना है पूरे चैप्टर में, क्वालिटी, क्वांटिटी. In the first half of the chapter we are discussing about animals. In the second half of the chapter we will be discussing about plants, मतलब crops, agricultural crops के बारे में हम बात करेंगे. वहां पे भी फोकस एरिया यही रहेगा, that is increasing quality and quantity. So milk yield depends on the quality of the breeds in the farm. Okay. तो जैसी आप ब्रीड यूज करोगे उसके ऊपर ही आपका मिल्क यील्ड है, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी है, और उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी है, वो आपके ब्रीड के ऊपर ही डिपेंड करता है. वी नो अबाउट दैट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट गुड ब्रीड्स हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज. अब दो चीजों पे यहाँ पे फोकस करेंगे. ऐसे ब्रीड आपको डेयरी फार्म में यूटिलाइज करने हैं जिनकी एक तो यील्डिंग पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब क्वांटिटी ज्यादा है. नंबर टू, द ब्रीड्स शुड बी रेजिस्टेंस टू द डिजीज. हमें पता है कि एनिमल्स में बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं. अगर आपका एनिमल डिजीज्ड है तो उसकी क्वालिटी के ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों के ऊपर इम्पैक्ट होगा. और ऐसा ना हो, इसीलिए आपको ऐसा ब्रीड स्टार्टिंग से सिलेक्ट करना है जिसमें उसके पास ये प्रॉपर्टीज होने चाहिए, एक तो क्वांटिटी और दूसरा रेजिस्टेंस टू डिजीज. सो वेज फॉर द यील्ड पोटेंशियल, हम यील्ड पोटेंशियल कैसे इंक्रीज करेंगे. तो नंबर वन, लुक आफ्टर द कैटल. सो क्या करना है, कैटल्स जो आपके यहाँ है आपके डेयरी फार्म में,
उनका मैनेजमेंट, उसके बारे में बात करें। एक तो हाउसिंग वेल, मतलब उनको रहने का जो ठिकाना आपने दिया है फार्म में वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, इट दे शुड गेट एडिक्वेट वाटर एंड ऑब्वियसली दे शुड बी मेंटेन डिजीज फ्री। ओके, कोई डिजीज ना हो, चाहे फिर वो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मॉस्किटो वगैरह, उससे भी उनको बचा के रखना है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर वहां पे होना चाहिए उनके लिए, एज वेल एज उनका जो हाउसिंग एरिया है, रहने का जो ठिकाना है आपके फार्म में, वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए। फीडिंग ऑफ कैटल, तो पहला आ गया उनका रहने के बारे में, एंड नाउ फीडिंग। सो फीडिंग ऑफ कैटल, इट शुड बी इन साइंटिफिक मैनर। ऐसा नहीं कि ऐसा आपने उसको कुछ भी खिला दिया तो फिर मिल्क और उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली फीडिंग जो उनका हो रहा है वो साइंटिफिक होना चाहिए, एंड यू हैव टू एम्फेसाइज ऑन द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द फोडर। आप उनको जो भी चारा खिला रहे हैं, फोडर मीन्स चारा, आप उनको जो भी खिला रहे हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी वो मेंटेन करनी चाहिए। उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। उसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो न्यूट्रिटिव है या सिर्फ हम उसको सिर्फ खिला रहे हैं। ओके, सो क्वालिटी ऑफ द फूड शुड बी इम्पोर्टेंट, एज वेल एज उनको जितना चाहिए उतना खाना उनको खिलाना चाहिए, राइट। सो फीडिंग शुड बी इन साइंटिफिक मैनर। Stringent cleanliness and hygiene of cattle and handlers while milking, storage and transport of the milk and its products, that is also important. Okay, throughout all the practice of this dairy farm, okay, you have to maintain the stringent, मतलब एकदम अच्छे से आपको मेंटेन करना है। stringent मतलब it should not be allowed, आपने जो रूल्स वहां पे बना के रखे हैं उसको मेंटेन करना, दैट इज stringent। क्लीनलीनेस मेंटेन करना पड़ेगा, हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन करना पड़ेगा एंटायर डेयरी फार्म का, एज वेल एज कैटल्स का भी, उनका बाथिंग वगैरह भी अच्छे से होना चाहिए। ओके, और हैंडलर्स जो है, द पर्सन और पर्सनल यू आर अपॉइंटेड टू डील विद द एनिमल्स, ओके, वो भी हाइजेनिक एनवायरमेंट में होने चाहिए, वो भी क्लीन एंड नीट होने चाहिए, एंड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मिल्किंग एज वेल एज आफ्टर मिल्किंग, पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो स्टोरेज है, मिल्क का स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मिल्क, और एज वेल एज सम अदर प्रोडक्ट्स इफ यू आर डायरेक्टली सेलिंग फ्रॉम योर डेयरी फार्म। तो ये सारी चीजें, सारे प्रैक्टिस जो हो रहा है उस टाइम पे, जितने भी पर्सन वहां पे है ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रैक्टिस, दे शुड ऑल्सो बी नीट एंड क्लीन, डिजीज फ्री, otherwise they might infect your infection as they are animal also. How to ensure the stringent measures, ये सब कैसे हो सकता है? So regular inspections to identify and rectify the problems. Okay, तो आपका जो डेयरी फार्म है वहाँ पे इंस्पेक्शन रेगुलरली होना चाहिए। वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज प्रॉब्लम्स। अगर कुछ ठीक से नहीं हो रहा है तो उसका, उस प्रोसेस का आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज रेक्टिफिकेशन। ओके, मतलब उसको करेक्ट करना। ओके, ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। वीकेंड बेसिस पे आप कर सकते हैं, एवरी फोर्टनाइट बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा टाइम लैप्स नहीं लेना चाहिए। ओके, रेगुलर विजिट्स बाय वेटरनरी डॉक्टर एज वेल। ओके, आपके ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं, उनमें उनका एक रेगुलर बॉडी चेकअप, हेल्थ चेकअप होना चाहिए, बिकॉज यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम दोज एनिमल्स। ओके, and not only on the basis of money as well. Okay, you have kept those animals in your dairy farm, it is your responsibility that you have to take care of their health. So regular visit should be there, okay, of a veterinary doctor to check their health, and if the doctor is prescribing something, okay, you have to uh, follow that instructions. Okay, सो ये कुछ डेयरी फार्म मैनेजमेंट के बारे में हमने बात की। उसी तरह से एक दूसरे तरह का फार्म होता है दैट इज रिलेटेड टू बर्ड्स, दैट इज पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। सो जैसे डेयरी फार्म मैनेजमेंट होता है पर्टिकुलरली मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के लिए, पोल्ट्री फार्म होता है एग्स के लिए मेन फोकस। सो पोल्ट्री इज द डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स यूज्ड फॉर द फूड और एग्स। ओके, तो you can say chicken of that as well as eggs of those birds। कौन से बर्ड्स पोल्ट्री फार्म में हम यूटिलाइज करते हैं? तो चिकन,
डक्स, टर्की, गूस। ओके, तो ये सारे जो है, these are the birds which are used in the poultry farm. Now what to do with this birds? Okay, इनका मैनेजमेंट कैसे करना है, that is also important. Now components of the poultry farm management we have to discuss about. Number one, शुरुआत से इस चैप्टर के स्टार्टिंग से एंड तक कंसेप्ट जो है हमारा वो चेंज नहीं होने वाला है. मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, वेदर इट इज एनिमल प्रोडक्ट और प्लांट प्रोडक्ट. नंबर वन. नंबर टू, ऑब्जेक्टिव्स जो है, प्रोसेस जो है, उसमें कंसेप्ट वही रहेगा, सिर्फ ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म कुछ वेरिएशंस आते जाएंगे, बाकी सब कुछ वही. तो जैसे एनिमल डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए हमने सेलेक्ट किए थे, तो डिजीज फ्री एनिमल सेलेक्ट करने हैं आपको. ओके, गुड ब्रीड्स सेलेक्ट करने हैं. तो यहाँ पे भी क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ द डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स. ओके. नंबर टू, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशंस. तो जैसा डेयरी फार्म मैनेजमेंट के लिए आपने क्लीन एंड नीट कंडीशन प्रोवाइड की है आपके एनिमल्स को, उसी तरह से ये बर्ड्स भी आपके एनिमल है, उनको भी आपको प्रॉपर एंड सेफ एनवायरनमेंट वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा. थर्ड, प्रॉपर फीड एंड वाटर. सेम टू सेम, जैसे आपने वहां पे एडेक्वेट अमाउंट में वाटर प्रोवाइड किया और अच्छा उनको फूड वगैरह प्रोवाइड किया, उसी तरह से यहाँ पे भी ग्रेन्स वगैरह जो कुछ है बर्ड्स के लिए वो प्रॉपर होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए. ओके, सो दैट ओनली यू कैन गेट द गुड क्वालिटी ऑफ द products from this poultry. Hygiene and healthcare same. Okay, और ज्यादातर केस में क्या होता है, एनिमल्स में इट इज वेरी इजी टू मेंटेन द particularly kettles और इन सभी में it is very easy to maintain the hygienic conditions. Okay, birds जो है पोल्ट्री फार्म है उसमें ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो ऑब्वियस है कि उसके लिए आपको केयर भी ज्यादा करना पड़ेगा. बर्ड्स जितने आपके पास हैं, ओके, उन सभी बर्ड्स का हेल्थ को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, बिकॉज चांसेस आर वेरी हाई दैट दे माइट एक्वायर सम वायरल डिजीज जस्ट लाइक बर्ड फ्लू एंड ऑल दिस. इट इज वेरी इजी टू एक्वायर फॉर देम. दूसरा, क्लच साइज यहाँ पे ज्यादा रहता है कंपेयर टू द हायर एनिमल्स इन द डेयरी फार्म. प्रोडक्टिविटी, इनका रिप्रोडक्शन साइकिल इनका फास्ट है कंपेयर टू द डेयरी फार्म एनिमल्स. पॉपुलेशन यहाँ पे ज्यादा रहेगा, डेंसिटी ऑफ द एनिमल्स विल बी ऑल्सो हायर इन दिस. तो इसीलिए यहाँ पे ये हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करना दैट इज वेरी क्रिटिकल एंड यू हैव टू ऑब्वियसली मेंटेन दिस. सो यही कंपोनेंट्स डेयरी फार्म में थे, वही कंपोनेंट्स पोल्ट्री फार्म में भी है, और हमें यहाँ पे भी उसी तरह से उसको मैनेज भी करना है. improved breed of chickens, that is leghorn. Okay, ये नीट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है. leghorn. Okay, तो कुछ ऐसे ब्रीड्स भी डेवलप किए गए हैं, ओके, which are improved varieties of the chicken. So what is breed? ओके, ये एक तो हमारे लिए नया. सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द ब्रीडिंग प्रोग्राम एंड ऑल, तीसरे तरह का जो हमारे पास ये एनिमल हस्बेंड्री प्रोसेस रहता है दैट इज फिशरीज. ओके, जैसे हमने पोल्ट्री देखा, डेयरी फार्म देखा, उसी तरह से फिशरीज भी है. तो पहले हम फिशरीज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ब्रीडिंग प्रोग्राम्स. ओके, so what is fishery? Fishery is an industry of catching, processing or selling of fish, shellfish or other aquatic animals like prawn, crab, lobster, edible oyster. Okay, तो you can say ये सारे इस तरह से आप देख सकते हैं, प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर,
ओके, ऑयस्टर। तो इसी तरह से एक फिशरी क्या जब हम वर्ड यूज करते हैं तो कंसेप्ट ये आता है कि इट इज रिलेटेड टू फिशेस ओनली। तो ऐसा नहीं है, फिशरी मतलब ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, ओके, इन जनरल। वहां पे पर्टिकुलरली सिर्फ फिशेस के बारे में बात नहीं है, ओके। So we know that aquatic animals are being the food source for the people who are living in the coastal zones, okay, और जो ऐसे countries हैं which are surrounded by, and small countries which are surrounded by ocean, you can say islands and all this, तो वहाँ पे तो उनके लिए जो है focus food, that is fishes and some other aquatic animals, okay, तो उसका भी मेंटेनेंस, ओके, वो भी हम उसी तरह से जैसे पोल्ट्री फार्म वगैरह है और उसी तरह से जैसे कि हमारे डेयरी फार्म है उसके जैसे ही उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ये नीट क्वेश्चन है, ये फ्रेश वाटर फिशेस कुछ है, दैट इज कटला विच इज कॉल्ड बंगाल कार्प, दूसरा है रोहू, एंड थर्ड इज अ कॉमन कार्प दैट इज कॉमन इंडियन कार्प, ओके। ऐसे कुछ मराइन फिशेस भी हैं लाइक हिल्सा, देन सार्डिन्स, दिस वन मैकरेल एंड पॉम्फ्रेट, ओके। ये मराइन मतलब ओशन से मिलते हैं, ये सारे फ्रेश वाटर है मतलब रिवर्स एंड पॉन्ड से मिलने वाले फिशेस हैं, ओके। तो ये दोनों नीट क्वेश्चन थे आपके लिए। फिशरीज प्रोवाइड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू द मिलियंस ऑफ द फिशरमैन एंड फार्मर्स। एक्वाकल्चर इसीलिए डेवलप हुआ है। एक्वाकल्चर का मतलब है फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के, फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हमने फर्स्ट स्लाइड में फिशरीज में देखे थे वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज एक्वाकल्चर। पाइसिकल्चर मतलब फार्मिंग ऑफ फिशेस ओनली, अगर आप सिर्फ फिशेस का कल्चरिंग कर रहे हैं वहां पे हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो फिर वो पाइसिकल्चर कहलाएगा। सो दीज आर द टेक्निक्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। फिशरीज में ये दोनों प्रैक्टिस है, दैट इज एक्वाकल्चर एंड पाइसिकल्चर, ओके। और उसी की वजह से जो कंडीशन क्रिएट हुई है, ओके, और यू कैन से अ रेवोल्यूशन हैज बीन started that is called blue revolution. It is the development and flourishing of the fishery industry, okay। क्योंकि हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसका कोस्टल एरिया है और वहां पे जो ओशन के रेंज में रहने वाले जो है लोग, कोस्टल जोन में रहने वाले जो लोग हैं, तो दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन हैज टू यूज फिशरी एज वन ऑफ द गुड सोर्स ऑफ देयर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। और उसी में से इसकी शुरुआत भी हुई, नॉट ओनली अ नेचुरल वे ऑफ द फिशरी, लेकिन उसको फिर पर्टिकुलरली एज ए कॉमर्शियल बिजनेस के जैसे डेवलप करने के लिए एक्वाकल्चर करना, पाइसिकल्चर करना, ओके, एंड दैट हैज स्टार्टेड अ रेवोल्यूशन दैट इज कॉल्ड ब्लू रेवोल्यूशन, ओके। तो ये फिशरी का एक बेनिफिट और है। सो डियर स्टूडेंट्स, today we have discussed about 3 different practices related to animal husbandry, that is dairy farm management, very simple, poultry management, as well as fishery management, okay. In the next lecture we will be discussing about some breeding programs, okay, for the enhancement of the quality and the quantity of the food we are getting from this all animals. ब्रीडिंग प्रोग्राम्स वी हैव टू डिस्कस, क्योंकि नेचुरली जो ब्रीड्स हो रहे हैं, ओके, ये सारे ब्रीड्स उतने सफिशिएंट नहीं होंगे इफ यू वांट टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन। तो ऑब्वियसली आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई है ऐसी ऑर्गेनिज्म ब्रीड जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है लेकिन क्वालिटी कम है, तो फिर क्या करेंगे। दूसरा एक ऐसा है जिसकी क्वालिटी अच्छी है लेकिन डिजीज होने के उसको चांसेस ज्यादा है। सो is it not possible that you can breed and create the hybrid of these two, having a good quality of the product as well as quantity? तो वो कैसे किया जाता है, उन सारे प्रोग्राम्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ओके। टिल देन जस्ट रीड
the starting few pages of this chapter. Okay, and just brush up your knowledge. Okay, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हम हमारे रूटीन लाइफ में सुनते रहते हैं, लेकिन साइंटिफिकली ये सब कैसे होता है, that we are obviously going to discuss in this chapter. Okay, fine. So today I am going to end this particular session over here. Okay, if you are having any doubt, any queries and question, okay, you can ask me, you can call me. Till then, have a nice day, stay safe.